दिस इज लॉन्ग कट आई हैव डन. किससे जाओ? प्लेस होल्डर से जाओ. ओवर दिशा. टोटल में से मैंने जीरो वाले माइनस कर दिए. कंसेप्ट समझा नहीं समझा था ये? दिशा ओवर. यस ओके फाइन. ये हो गया. नेक्स्ट question. Mayur sir wants to arrange 8 books on a shelf. Find the number of ways to do this if two specified books are always together and never together. पहला always together का लेते हैं. कितने books always together होना चाहिए? 2 books should be always together, right? 2 books should be always together. Always together. So make a set or make a group of it. 2 book का एक group बन गया. बाकी के बुक्स एज इट इज. एंड टोटल बुक्स कितना है? 8 बुक्स. नाउ 2 बुक का ग्रुप बनाने का है एक. सो मेक अ ग्रुप एंड कॉल देम एज 1 बुक. 2 बुक को ज्वाइन करो, कॉल देम एज 1 बुक. टोटल 8 बुक्स आर देयर. नाउ 2 आर ज्वाइंड. सो कितने हो गए बुक्स? दोनों का ग्रुप बना है. हाँ. 2 बुक का ग्रुप नहीं बना रहे. We are not making group of 2 books. Total 8 books are there. उसमें से दो बुक्स का ग्रुप बनाया. That's all. बाकी बुक्स as it is. You are not making group of 2 books. Only one group you are making of 2 books and other books separate. Two specified books. Somebody is giving me answer also there. I'll see that later. 2 specified books. Okay. कितने हो जाएंगे? 7. देखो इधर बोला है. Consider 2 books as a single set. These 2 books can be arranged among themselves in 2 factorial ways. 2 बुक को among themselves कितना हो जाएगा? 2 factorial way. Or you can do that later. And then 1 set plus other 6 books. That is total 7 books can be arranged in 7 factorial way. That is 5040. And finally 2 multiplied by 5040. So somebody was giving me answer. That's wrong. समझा नहीं समझा बीबी? Is this part clear? First part is over. Final answer is 10,080. You may, it's multiplication, so you may do that 2 factorial later on. 7 book का पहला करो तो भी चलेगा. That means what I want to say is this. This section फर्स्ट क्या करना है? 2 बुक का एक सेट बनाए, बाकी का 6 बुक्स, टोटल 8 बुक्स. 2 का सेट बना के एक सिंगल बुक हो गया. Okay, so that is 1 set. 2 books का 1 set, and there are 6, so total 7 books. So 7 factorial. Do this first. Now set में कितना है? उसके बाद set का calculation. This is first. ये कर लो आप. Okay. And then you do this. सेट के लिए कितने सेट है अपने पास? एक ही सेट है 2 का, तो 2 फैक्टोरियल. अगर 3 होते हैं तो 3 फैक्टोरियल. नाउ नेक्स्ट says books are never together. 2 books are never together. इधर 2 books together वाला कंसेप्ट हो गया. अब 2 books not together. Now take one of the 2 books
and remaining 6 books. टोटल कितने बुक्स लेने हैं? 7 बुक्स लेने. कौन से 7 बुक्स लेने? Those 2 books should not be together. उनमें से एक बुक, one book you are keeping aside and you are taking one book from that plus the remaining 6 books. So total 7 and you can arrange them in 7 factorial ways. यहां तक समझा? This sentence. दो बुक साथ में नहीं होने चाहिए ना, तो 2 बुक साथ में नहीं होने चाहिए. उसमें से एक बुक ले लिया मैंने, एक बुक पेंडिंग रखा मैंने, वो लिया ही नहीं फिलहाल. फर्स्ट आई एम अरेंजिंग द 7 बुक्स. Is this clear? 7 books are arranged in 7 factorial ways. हेलो, मेरे को सिखा रहा हूं नया. समझा कंसेप्ट कि नहीं समझा अभी तक? जो 2 बुक साथ में नहीं होने चाहिए उसमें से एक बुक लिया है, एक बुक नहीं लिया मैंने. एक जो बुक नहीं लिया उसको बाद में अरेंज करता हूं मैं. पहले लेट मी अरेंज द 7 बुक्स. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मेरे को. 2 books should not be together. Okay, let's say Mayur sir and Rahul sir should not sit together. तो दो में से एक को बाजू में रखो. Take Rahul sir, keep Mayur sir aside. Take Rahul sir and other sirs, arrange them first, and then make sure Mayur sir will not sit to the left or to the right of Rahul sir. Arrange others. Okay, जिन दोनों में झगड़ा है उनमें से एक को बाजू में रखो, बाकी जन को अरेंज करो, एंड देन वो झगड़े वाले को लास्ट में अरेंज करेंगे. नाउ ओके, वी कैन प्लेस द रिमेनिंग बुक्स in such a way to avoid 2 places adjacent to the first book, so that there are 6 places available. Hence 6 multiplied by 7 factorial. 6 places बता रहा हूं, देखो नीचे डायग्राम से बता रहा हूं. That blue color book is a book, उसके बाजू में दूसरा बुक नहीं आना चाहिए. So how many books are arranged first? Arrows मत देखो. First, how many books are arranged? 7 books are arranged. अभी जो एक्स्ट्रा बुक आपको अरेंज करना है उसको किधर नहीं करना चाहिए? ब्लू के लेफ्ट में भी नहीं करना चाहिए, ब्लू के राइट में भी नहीं करना चाहिए. तो कितने प्लेसेस अवेलेबल है तुम्हारे पास? अरे कितने प्लेसेस अवेलेबल है? हाँ, 2 कैसे? एरो दिखा रहा हूं ना, एरो से इतने प्लेसेस अवेलेबल है, एरो वाले प्लेसेस अवेलेबल है. दैट एक्स्ट्रा बुक, जो बुक अपने अभी तक अरेंज नहीं किया, that can be kept anywhere in the 6 places. ब्लू बुक के बाजू में अभी जो बुक बाकी है वो ब्लू के बाजू में नहीं आना चाहिए. Blue and that book should not come together. So that book, the remaining book, you can arrange in 6 different places. कितना बुक है? 1 book and 6 places. So 6p1. What will be 6p1? Shortcut. 6p1 is what? 6p1 shortcut से. Write only one term, 6. So वही 6 आएगा. ये 6 उधर से है. वैसे आया 6. तो 6, सॉरी इधर लिखता हूं, 6p1. अभी अपना शॉर्टकट से 6p1 से राइट 6 ओनली वंस, सो 6 आंसर. मल्टीप्लाइड बाय ऊपर का आंसर 7 फैक्टोरियल था, 7 फैक्टोरियल. नाउ सम ऑफ यू मे हैव अ डाउट that book, sir, that blue book, if it is in the corner, वो भी इधर दिखा रहा हूं, और ऐसे होगा वो भी 6 places ही रहेगा. Count those arrows. The remaining book, एक बुक आपने पेंडिंग रखा था, that can be arranged at the left side, the first book के बाद, second book के बाद, third book के बाद, any way you draw diagram. The blue color book can be anywhere. Still you will have 6 options. 6 में से आपको कितने यूज करने हैं? 1.
तो 6 आउट ऑफ 6 वन प्लेस यूज करना है, तो 6 फैक्टोरियल, सॉरी से नॉट 6 फैक्टोरियल, 6p1, 6p1 is 6. What arrow is showing? Arrow is showing the places available. How many places are available once you arrange 7 books? आप क्या कर रहे हैं, 2 बुक साथ में नहीं होना चाहिए, तो 2 बुक साथ में नहीं होना चाहिए, उसको क्या किया आपने, उसमें से एक बुक किधर रखा, बाजू में रखा. कितने बुक को अरेंज किया आपने, आपने बुक को कितने बुक को अरेंज किया, आपने 7 बुक को अरेंज किया. अब वो जो बुक पेंडिंग था उसको अरेंज करने के लिए यू हैव 6 डिफरेंट ऑप्शंस. That is 6p1. 6p1 is 6 multiplied by पहला आंसर 7 factorial, 7 factorial. Is it clear? Is it clear? Others? आएंगे और क्वेश्चंस करने हैं ऐसे. ये पहला क्वेश्चन आ गया, तो पहला समझा क्या? जिनमें प्रॉब्लम नहीं है पहले उनको अरेंज करो. उनको अरेंज किया, जो प्रॉब्लम है उधर किधर, उसको किधर किधर अरेंज कर सकते हो. देखो, यू मे ड्रॉ डायग्राम आल्सो, लाइक आई एम शोइंग दैट डायग्राम. Blue book and the book which you want to arrange now should not come together. So that book, let us say that book is red book. Red book can be placed at 6 different places. Blue and red should not come together. Okay. Next. Okay. तो स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ लेना है ले लो. Next. Alternatively, this is another alternative. Total arrangement में से उतना माइनस करो, वो भी आ जाएगा. I'll prefer the first answer. But alternately, you can subtract arrangements when those books are together from the total arrangement. Total 8 books are there. So 8 factorial minus 2 into 7 factorial. into 7 factorial. 2 क्यों? बुक के आगे, बुक के पीछे रह सकता है. Okay. I'll prefer the first answer. There is another possibility. Next. This you try. In how many ways can 7 examination paper be arranged so that paper number 1 and paper number 4 are never together? 2 पेपर साथ में नहीं आने चाहिए. अभी किया उसी टाइप का सम है, उसमें बुक्स थे, इसमें पेपर बोल रहे हैं, और 2 साथ में नहीं आना चाहिए. वो नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 and 4. 2 पेपर should not come together. Sometimes they call it as good paper and worst paper. This is paper number 3 and paper number 5. So whatever number they give, तो साथ में नहीं आने चाहिए. अभी किया वैसा करो. तो अपने पास 7 पेपर्स है, बराबर है. उसमें से 2 पेपर साथ में नहीं आने चाहिए, तो एक पेपर बाजू में निकाल के रखते हैं. तो कितना हो गया पेपर? एक पेपर पहले बाजू में निकाल के रखो. एक पेपर बाजू में निकाला 7 में से, तो कितना बचा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. 7 में से एक पेपर बाजू में निकालो. वो करता हूँ तो 6 फैक्टोरियल 3600 नहीं आएगा. 6 बचे
और 6 फैक्टोरियल, 6 factorial is 720. She may be giving the final answer. I'm not asking final answer. 720. Agreed? Okay. अभी वो जो बुक है, अभी जो पेपर है जो बाजू में रखा था उसको अरेंज करना है. कितनी जगह भाई? टोटल कितने पेपर है अपने पास अरेंज किए हुए? 6. एक के आजू बाजू में नहीं होना चाहिए, बाकी सबके आजू बाजू में चलेगा. फाइनल आंसर में भी 3600. I'll check that. I'm going step by step. लास्ट टाइम कितने थे? 8 थे ना लास्ट टाइम? 8 थे. 8 में से 7 को अरेंज किया, एक बचा. तो जो एरो करके दिखा रहा हूं, कितने एरोज हो गए? 6 एरोज हो गए. वैसा इधर नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 है, 7 में से एक बाजू में रखेंगे तो 6 है. 6 को अरेंज किया, 6 में से एक की बाजू में नहीं आना चाहिए, बाकी सबके बाजू में आ सकता है. कितने हो गए? 7 minus 2, that is 5. 5p1 which is 5 multiplied by 7 minus 1. 6 को अरेंज किया ना आपने, वही 3600 ways. Yeah, final answer you have given. Correct. समझा कि नहीं समझा? ये मैं इधर फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी आगे फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको. सर 7 minus 2 क्यों लिखा? 7 minus 2 लिखा, कितने पोजीशंस है? Once you arrange 6 papers, there are 5. 6 पेपर अगर अरेंज कर ले, जैसे दिस पेपर अरेंजमेंट, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6. ओके. अभी ये जो पेपर है इसके बाजू में वो आना नहीं चाहिए, ऐसा एज्यूम कर लेते. कोई भी एक ले सकते हैं, दिस पेपर के बाजू में नहीं आ सकता. तो भी आप इधर अरेंज कर ही सकते हैं एरोज. That paper can be inserted here. Paper 1 and 4. So let us say this is, ये जो पेपर इधर है ना सर्कल किया, ये पेपर 1 है. और ये पेपर 4 किधर डाल सकते? इधर भी तो डाल सकते हैं, इधर नहीं डाल सकते. इसके बाजू में इधर भी नहीं डाल सकते, इधर डाल सकते हैं, या एंड में डाल सकते. इधर कितने एरोज हो गए? 5 हो गए ना. 5 वेज. और कितने पेपर्स को एडजस्ट करना है? एक ही. तो 5p1 is 5. इधर आ गया वो 5. और बाकी कितने पेपर अरेंज किया आपने? 6. तो 6 फैक्टोरियल. क्लियर? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन. और 7 फैक्टोरियल में से माइनस करना है. आई विल नॉट डू दैट. दिस a family of 3 brothers and 5 sisters is to be arranged for a photograph in such a way that first one लेते हैं, all brothers sits together. ये आना चाहिए आपको. all brothers sits together. तो क्या करने का? ब्रदर्स का ग्रुप बना लेने का. 3 ब्रदर का ग्रुप बना लो. कितना हो गया? 1 हो गया. 3 ब्रदर्स का सेट बनाने का, ग्रुप बनाने का. पॉइंट नंबर 1 बता रहा हूं मैं. all brothers sits together. क्या हो गया? उनका एक सेट बना लिया. और कितने सिस्टर्स है? ब्रदर का 1 सेट और 1 ग्रुप, एंड सिस्टर 5. तो टोटल कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल. एक पार्ट हो गया. अभी ब्रदर्स कितने हैं? 3. दे कैन बी अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन. आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? कितनी समझ रहा है? ब्रदर्स कितने हैं? 3 है. इनका ग्रुप बनाओ. चलो 3 ब्रदर का एक ग्रुप बनाए. दैट इज 1 नाउ. ट्रीट दैट एज 1 पर्सन. 3 ब्रदर को ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप हो गया. बराबर है. और सिस्टर्स कितने उनके पास? 5. तो 5 प्लस 1 ग्रुप ऑफ ब्रदर्स, टोटल 6 हो गए. 6 कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? 6 में से 6p6. सब ब्रदर एक साथ होने चाहिए ना, तो दैट सेट शुड बी टुगेदर. 6p6. That is 6 factorial. We'll see that how much it comes to. 6 factorial is 720. Correct. अभी आपके ग्रुप में कितने जन हैं? आपने जो सेट बनाया था, ग्रुप बनाया था, उसमें कितने जन हैं?
ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3, अभी ग्रुप का फैक्टोरियल करना पड़ेगा. Those 3 among themselves can be arranged in 3 different ways. So 3p3, 3p3 is 3 factorial, 3 into 2 into 1, 6. पहला आंसर कितना था? 720. दूसरा आंसर कितना था? 6. मल्टीप्लाई. जो आएगा वो. कंसेप्ट समझ रहा है? You're getting the concept. When some of them comes together, make that as a group. उसको मिला के एक ग्रुप बनेगा. And the remaining, इनका पहला फैक्टोरियल निकालो. फिर ग्रुप में कितने मेंबर है उनका भी एक फैक्टोरियल निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई करो. टुगेदर वाली बात होती है तब. देखो 3 brothers can be arranged among themselves in 3 factorial, that is 6 ways, and then 3 brothers are together, so treat them as one person, that is a group. So there are 1 plus 5, 1 called group of brothers and 5 sisters, so 6 हो गया. 6 person, so 6p6, 6 factorial, 720, and finally 6 multiplied by 720, that is 4320. एक पार्ट हो गया, first part. Any doubt? Then the second part. No 2 brothers sit together. No 2 brothers sit together. साथ में नहीं बैठने चाहिए 2 brothers. Continued अभी. 5 sisters. पहले sister को arrange करो. 5 sisters can be arranged among themselves. Brother को बाजू में रखा. प्रॉब्लम है ना, ब्रदर्स को अरेंज करना. ब्रदर्स शुड नॉट सिट टुगेदर. लेट अस अरेंज सिस्टर्स. सिस्टर्स कितने हैं? 5. लेट 5 सिस्टर्स अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 120 ways. एग्रीड? ए पॉइंट? अरे एग्रीड या नहीं? किसको बिठाया आपने? फाइव सिस्टर्स को बिठाया. So let us call it as now S1 sister 1, S2 sister 2, S3 sister 3, S4 sister 4, S5 sister 5. 5 sisters were arranged. Now brothers should not sit together. So brothers किधर किधर आ सकते हैं? कितने places है brothers के लिए? Let us count number of places for brothers. Brothers cannot, 2 brothers cannot come together. इधर black arrow से दिखा रहा हूं मैं. One of them, this is 1 place. This is 2nd place. This is 3rd place. 4th place. 5th place and 6th place. Places are 6. ये तो समझा? कितने brothers है? How many brothers are there? 3. So they're going to occupy only 3. Out of 6, they can occupy any 3 places. So 6p3. 6p3 कितना हो जाएगा? अपना शॉर्टकट तरीका 6p3 तो कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. 6 5 30. 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 120. और पहला 120 सिस्टर को अरेंज किया तो 120 आया ना फर्स्ट. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट. ये दिखा रहा हूं, देखो इधर भी देखो, मैंने किया इधर ब्लैक आरो से दिखा रहा हूं. ब्रदर्स कैन सेट हाउ मेनी प्लेसेस आ गया? आई थॉट आई हैव नॉट डन दैट बट आई हैव डन इट. ओके, कितने ब्लैक आरो दिख रहे हैं? 6. एंड हाउ मेनी ब्रदर्स टू सेट? 3. सो प्लेसेस आर 6 एंड वी हैव टू ऑक्यूपाई ओनली 3. 6th position and 3 brothers, so that number of arrangement can be 6p3. 6 factorial upon 3 factorial which is 120. ओके, अपने शॉर्टकट से करने का, ऐसा नहीं करने का. फाइनली 120 into 120. पहला आंसर भी 120 था ना, सिस्टर का आंसर ये वाला.
this 120 multiplied by this 120. $32 means what? This is what question number. I don't remember question number also. Okay, that's it out. Now, dear student, my request to you is from your module study material 5A exercise, go through it. बहुत आसान है 5A. और कभी before tomorrow's lecture there are some, I don't remember exactly how many questions are there. Let me check it out and tell you how many questions are there. One second. 23 questions are there. 5A, 23 questions. To solve those 23 questions, according to me, you will not require more than 45 minutes. कोई तो सिंपल है, बिना किए हुए आंसर आ जाएगा. Your options given. Okay. Now, another point. In study material, there are some wrong answers. I want you to tell me tomorrow which all are wrong answers. कल के कल, हाँ? Agreed? All answers are not correct. How many wrong? I'll not say that. How many wrong are there? Tomorrow we'll discuss. Is it okay? You want to say those? One sec. I'll show you that here itself. Seeing is believing. So see this, what it is. जरा बड़ा कर देता हूं इसको, zoom कर देता हूं तो you can see it properly. देखो क्या क्वेश्चन है पहला. 4P3 is evaluated as, you can use always shortcut. अभी shortcut मालूम पड़ गया है. 4 multiplied by 4P3, 3 लिखना है ना, तो 4 multiplied by 3 multiplied by 2, 24. 4P4 is equal to, बराबर है. Then third is equal to, that is 7 factorial. 0 factorial is equal to, इसको तो कुछ करना ही नहीं. 0 factorial is equal to fourth का आंसर. फैक्टोरियल के लिए एरे टाइप साइन भी है ना. 1, that is B. Okay, fifth one. In NPR, n is always a positive integer. It cannot be just integer. Integer can be positive, integer can be negative. It cannot be fraction. N is always positive. कोई भी example देखो. So such exercise is there. So it's not some big exercise I've given you. Sir, इतना सारा दिया है 23. एक हाथ दूसरा सम में टाइम जाएगा, बाकी सम फटाफट हो जाएंगे. All this 23 do it. Some answers, what I said. Some answers, what I said. Are wrong. Let us discuss tomorrow. Thank you.